Impact of AI to ChatGPT and Google Bots in modern research. So first of all, I want to know about it. How many people from the university, and how many research scholar with me. So can you chat me the how many people are from the teachers, and how many people are uh, research scholar? Radhika, okay, ma'am. Yes, yes, write down the chat box. How many people are from university? Actually, they are assistant professor, associate professor, and professor. How many are research scholar? Deepti Yadav, Nashabat, Rahman Khatun. Okay, that's all. I think most of the from university they are teachers, and some are from they are assistant professor. Okay. Uh, Good evening, everyone. Now we will discuss about the very burning topics. The impact of AI tools, ChatGPT and Google Words in modern research. तो आज पूरे सेशंस में फर्स्ट डे we will discuss about the ChatGPT. After that, tomorrow we will discuss about the Google Word. Okay, how to Google Word it help you in modern research. So I want to introduce myself. I am Mohammad Rafiq. You can see on screen. I am the AI tool expert and director Bharat Digital Academy. So first of all, we will discuss about कि किस तरह से चैट जीपीटी काम करता है, किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करते हैं, और चैट जीपीटी किस तरह से हमारी लाइफ में रिसर्च में हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में समझेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू द प्रैक्टिकल, है ना। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल कर कर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं इन मॉडर्न रिसर्च में, कि किस तरह से रिसर्च को ये हमारे लिए बहुत काम आ सकता है, किस तरह से हम बहुत सारे काम को बहुत कम टाइम में अपना टाइम बचाकर इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, वो सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर we are understanding exactly the introductions of the artificial intelligence. Basically, artificial intelligence AI is rapidly transforming the field of the research, introducing the new tools and methodologies that are revolutionizing the way of the gather, analyze and disseminate knowledge. तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, है ना। ये जो क्या है, फील्ड ऑफ द रिसर्च रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है ना। जो नए नए टूल्स को, नई मेथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहा है, वो भी एक तरह से बहुत रेवोल्यूशनाइज है ना। वी कैन वी गैदर, एनालाइज एंड डिसेमिनेट नॉलेज। जो भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। Among the most prominent AI tools emerging in the recent years are ChatGPT and Google Words to large language model scale। यानी ये दोनों जो भी चैट जीपीटी और गूगल वर्ड क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कैपेबल टू जनरेटिंग ह्यूमन क्वालिटी टैक्स, जिस तरह से ह्यूमन क्वालिटी टैक्स को बहुत इजीली जनरेट कर सकता है। ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज, writing different kinds of the creative contents and answering your questions in the informative way। तो
आपके जो कंटेंट्स को क्रिएट कर सकता है, आपके जो क्वेश्चंस हो उसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से और इंफॉर्मेटिव वे में आपको आंसर दे सकता है। कौन दे सकता है? चैट जीपीटी एंड गूगल वर्ड। हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी और गूगल वर्ड की बात कर रहे हैं, जबकि और बहुत सारे कई टूल्स, एआई टूल्स है जो रिसर्च के लिए हेल्प करते हैं, बट वी आर we will understand only the chat gpt and google bard. Now what we will discuss in this presentation develops into the impact of the chat gpt and google words on modern research. जस्ट मिनट कैमरा तो खुला देखो। हाँ? I am visible or not? Can you No, sir. no? Okay. तो इसमें इस तरह इसमें लगा दो, इसमें वो कर दो, मैं इसमें कर देता हूँ। जस्ट मिनट, एक्चुअली देयर इज सम हवा रहा है। ओके, so now we are discussing about the these presentations develop into the impact of the chat gpt and google word on the modern research, highlighting their potential to enhance the research productivity, accelerate the discovery and faster collaborations. तो यहाँ तक इंट्रोडक्शंस था ये। आई थिंक्स, आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी, इफ वी कैन simplify these introductions, so we can understand that the chat gpt is helpful tools for the uh, uh, generating the human quality text, translating language, writing different kinds of the creative content, and answering your questions in the end question in an informative way. Okay, this is also is very important in modern research. The next one will कि एक्चुअली चैट जीपीटी ए वर्सटाइल टूल फॉर द रिसर्च। तो क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। चैट जीपीटी बेसिकली इज द powerful LLM developed by the OpenAI. हर कोई जानता है, most of the peoples are know about that the chat GPT is developed by the OpenAI, showcasing remarkable capabilities in the natural language processing and text generations. In this realm of the research, ChatGPT offers the plethora of applications, including क्या कर रहा है वो, लिटरेचर रिव्यू एंड समराइजेशंस। तो वो क्या करता है, लिटरेचर रिव्यू भी कर लेता है, समराइजेशन भी करता है। चैट जीपीटी कैन efficiently scan the vast amounts of the research literature, identify the relevant sources, and generate the concise summarize, the saving researchers valuable time and efforts. जो पहले मैंने आपको बताया क्या होता है ये, सेविंग द रिसर्चर वैल्यूएबल टाइम टू एफर्ट्स। बहुत सारी चीजों को हम समझने में हमें हफ्ता लग जाता है, महीना लग जाता है, लेकिन जब जब हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड each and everything very easy modes, and we can save the time. The hypothesis generations and testings. ChatGPT can assist in the formulating the research hypothesis, suggesting the potential research directions and evaluating in the plausibility of the proposed solutions. है ना, बहुत सारी हाइपोथेसिस जो पोटेंशियल ऑफ द रिसर्च डायरेक्शन हमें सजेस्ट कर देता है कि आपको इस डायरेक्शन में, इस तरह में आपको रिसर्च करना है। ठीक है, बहुत सारी जो आपकी जो रुका जो 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 प्लॉजिबिलिटी है उसको वो क्या करता है, उसका हल निकाल देता है, उसका सॉल्यूशन बता देता है, वो आपको रोक देता है, बल्कि बल्कि आपको क्या कंटिन्यू करता है, आपको रुकना नहीं पड़ता कभी। Data analysis and interpretations. The chat GPT can analyze the complex data
sets identify the patterns and provide the insight that that may not be reality apparent, aiding the researchers in the making sense of their data. ठीक है, डाटा को एनालाइज करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, इसके बारे में हम आगे आपको ऑन द प्रैक्टिकल वी कैन डिस्कस अबाउट द थिंग्स, रिसर्च कम्युनिकेशंस एंड डिसेमिनेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो हाँ, क्या 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 और क्या करता है, द रिसर्चर क्राफ्ट the ChatGPT can help the researchers craft effective research proposals, write a clear and concise research papers, and communicate their finding to the wider audience, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर सकता है, the chat GPT can help the researchers craft effectively research proposal, write a clear concise, मतलब clear concise को यानी जो आप समझ भी नहीं सकते उस चीज को ना बहुत इजीली तरीके से, बहुत इजीली वे में चैट जीपीटी कैन राइट, है ना, एंड कम्युनिकेट द देयर फाइंडिंग टू द वाइडर ऑडियंस, और ऐसी फाइंडिंग को करता है तो आराम बहुत इजीली तरीके से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वर्सेटाइल टूल फॉर द रिसर्च, है ना। तो ये चैट जीपीटी क्या है, वर्सेटाइल टूल्स फॉर द रिसर्च, we can understand and we can do the literature review and summarizations, hypothesis generation and testing, data analysis and interpretations, research communication and the disseminations. The other one is इसका किसी का कॉल आ रहा था। The another one is the potential challenges and considerations, है ना। तो ये क्या है, इसके अलावा भाई आपके पास चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, है ना। बहुत सारी फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको चैट जीपीटी, तो आपके सामने बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी है ना। तो वो क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। While the ChatGPT and Google Bard offer the immense potentials for the research, it is crucial to the acknowledge and address potential challenges and considerations associated with their use, है ना। तो अगर ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल फॉर रिसर्च है, रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और कुछ चैलेंजेस भी है। वो चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो चैट जीपी ने कहा कि ठीक है, आपको हम बहुत ज्यादा प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए पोटेंशियल तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें आपकी रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मटेरियल, कुछ टेक्स्ट आपने फाइंड किया और एज इट अपने रिसर्च पेपर में, अपने आर्टिकल्स में या अपने रिसर्च फाइंडिंग में उसको चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पेस्ट कर दिया। बल्कि क्या है, AI models including the ChatGPT and Google Words are trained on the large data set to text and code. The quality and accuracy of the training data can significantly impact the reliability and accuracy of the model's output. Researchers must carefully evaluate the provenance of the quality of the information and generated by the AI tools and exercise the critical thinking to ensure the validity of their findings. You should you should understand exactly what is the right and wrong, है ना, reliability and accuracy. तो इसलिए ये कह रहा है कि रिसर्चर मस्ट केयरफुली, है ना, रियल मस्ट, तो इसमें किस चीज का मस्ट का यूज किया गया है, रिसर्चर मस्ट केयरफुली एवलुएट द प्रिवेंस एंड क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एआई टूल्स, है ना। जो जनरेट किया है एआई टूल्स ने इंफॉर्मेशन को, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करना है, उसी के बाद आपको उसको अपने काम में लेना है। ठीक है, बायस एंड फेयरनेस। ठीक है, तो क्या एआई मॉडल कैन in eventually perpetuate the bias present in the training data
leading the unfair of the discriminatory outcome, researcher must be vigilant in identify the mitigating the potentials of the bias in AI generated outputs, ensuring that their research uphold the principle of the fairness and equity. तो हमें ये भी सब समझना होगा कि वो जो चैट जीपीटी है किस तरह से बाइस और फेयरनेस की प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी हमें बहुत इजीली समझना पड़ेगा और बड़ी सावधानी से हमें बड़ी केयरफुल तरीके से हमें उस जो टेक्स्ट को, उस कंटेंट को हमें यूज करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, AI models can be complex and opaque, making it challenging to understand how they arrive at their outputs. Researchers need to demand transparency and explainability from the AI tools, enabling them to the trace of the reasoning behind the model decision and access of the credibility of its result. ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी कि आपको जब भी चैट जीपीटी यूज करने होगी तो देयर आर द चैलेंजेस आल्सो हियर, है ना। बहुत सारी, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि चैट जीपीटी आपको हर चीज प्रोवाइड करके दे देगा। तो आपको क्या है, रिलायबिलिटी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, बाइस एंड फेयरनेस की प्रॉब्लम है, और ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको सामना करना पड़ेगा whenever you are using the chat GPT, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। The other one is we will discuss के exactly what chat GPT can do, है ना। अब हमने समझ लिया चैट जीपीटी जो है वो अब हमें क्या कर सकता है, कैसा कर सकता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी जो है हमारे लिए क्या कर सकता है, वो स्टार्टिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी स्टार्टिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट, और ये रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, रिसर्च टॉपिक फाइंडिंग, रिसर्च गैप फाइंडिंग, वो सारी चीजों को हमें वो फाइंडिंग कर सकता है। सजेस्ट ए सुटेबल रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि वो हमें सुटेबल रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में भी एडवाइस कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, हमको बता सकता है। मेक एन आउटलाइन ऑफ द रिसर्च पेपर, थीसिस एंड रिपोर्ट्स। तो चैट जीपीटी क्या कर सकता है, हमको एक रिसर्च पेपर की, थीसिस की या रिपोर्ट की आउटलाइन को हमें सजेस्ट कर सकता है ना, हमें बता सकता है। वो लिटरेचर रिव्यू को भी सजेस्ट कर सकता है और इंटरप्रेट रिजल्ट को भी सजेस्ट कर सकता है, और वो हमें कर सकता है एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, एकेडमिक राइटिंग है, रिफ्रेश एंड इम्प्रूविंग राइटिंग, यानी वो जो हमें जो कर सकता है, हमें क्या कर सकता है, एकेडमिक राइटिंग। जब हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें हेल्प करेगा, रिफ्रेशिंग में हेल्प करेगा, और राइटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो रिप्लाई टू द एनी क्वेरी इन योर माइंड, यानी जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके दिमाग में जो आप सोच रहे हैं, उस सारी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, ये आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है, रिप्लाई कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। तो ठीक है, तो ये हमारे सारी चीजों पर क्या कर सकता है, ये हमें रिसर्च में हेल्प कर सकता है, रिसर्च टॉपिक में हेल्प कर सकता है, ठीक है, सुटेबल रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हेल्प कर सकता है, आउटलाइन क्रिएट कर सकता है, लिटरेचर रिव्यू कर सकता है, इंटरप्रेट रिजल्ट निकाल सकता है, एकेडमिक राइटिंग, पैराफ्रेज एंड इम्प्रूविंग राइटिंग कर सकता है, और हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, ठीक है ना। तो अब जो हमने क्या करता है, लेकिन अब हमारे दिमाग, अब हमें सोचना होगा कि जो हमने अभी चैलेंजेस के बारे में पढ़ा, तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट चैट जीपीटी कैन नॉट डू, चैट जीपीटी जो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है ना। बहुत सारी चीजें तो कर ली चैट जीपीटी ने, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो नहीं कर सकता, हमने अभी आपको बताया था वो सारी चीजों के बारे में। लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में कि चैट जीपीटी बेसिकली हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। तो चैट जीपीटी कैन नॉट रीड योर माइंड, यानी चैट जीपीटी क्या कर सकता है, आपके माइंड को नहीं पढ़ सकता, है ना, आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता है,
चैट जीपीटी कैन नॉट टीच यू, चैट जीपीटी आपको पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है ना। रिसर्च चैट जीपीटी कैन नॉट टीच यू, रिसर्च इज प्रोवाइड मटेरियल। तो क्या कर देगा, आपको प्रोवाइड तो कर देगा मटेरियल, लेकिन चैट जीपीटी कैन नॉट रीड, कैन नॉट टीच यू, है, बट इट प्रोवाइड द मटेरियल्स, मटेरियल तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस मटेरियल का फॉर्मेट क्या होगा, हम उसको किस तरह से यूज करेंगे, इट इज डिपेंड योर माइंड। इसलिए चैट जीपीटी ने कहा कि आई कैन रीड योर माइंड। चैट जीपीटी से आई कैन नॉट रीड योर माइंड, ओनली आई प्रोवाइड यू मटेरियल। और वो मटेरियल को किस तरह से आपको मैनेज करना है, क्या यूज करना है, वो डिपेंड ऑन योर माइंड, योर एबिलिटी, योर कैपेबिलिटी। चैट जीपीटी कैन नॉट कलेक्ट डाटा फॉर यू, चैट जीपीटी क्या कर सकता है, चैट जीपीटी कैन नॉट कलेक्ट डाटा फॉर यू, लेकिन लेकिन इट्स प्रोवाइड द डाटा विच इज ऑलरेडी ऑलरेडी स्टोर इन चैट जीपीटी। तो वो आपको क्या कर सकता है, आपके लिए कोई डाटा, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च में आपको डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता है आपके लिए, लेकिन इट इज प्रोवाइड द डाटा, लेकिन आपको वो डाटा प्रोवाइड कर सकता है जो भी आप रेफरेंसेस के लिए जाए। इट्स मे बी प्रोवाइड द राइटिंग रेफरेंसेस, तो क्या कर सकता है, ये आपको राइटिंग रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकता है। इट्स मे बी प्रोवाइड द रॉन्ग रिसर्च, ठीक है ना, तो आपको क्या कर सकता है, ये रॉन्ग रिसर्च भी प्रोवाइड कर सकता है। इट हैज सम लिमिटेशन फॉर द फाइंडिंग एक्यूरेट रिजल्ट, जो बताया ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। इट इज डिपेंड योर रिसर्च और बिहाफ, ये फिर क्या है, सिर्फ आपकी जो बिहाफ पे रिसर्च है उस पर ही बस ये आपको कर सकता है, ठीक है ना। तो अब वी कैन अंडरस्टैंड नाउ कि एग्जैक्टली द चैट जीपीटी क्या है। बहुत ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं है कि हम सारा बहुत सारा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हमें थोड़ा सा आई बिलीव इन द ओनली आई बिलीव इन द प्रैक्टिस गेटिंग द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी किस तरह से कैसे काम करता है। तो अब हम कैसे काम करता है चैट जीपीटी, वी आर हम लोग समझेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमें प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो बस जस्ट वी आर, और आज तो हमने ये पढ़ाया, इसके बाद कल हम लोग उस पे जो गूगल बार्ड का देखेंगे, एग्जैक्टली गूगल बार्ड कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले अब आते हैं वो चैट जीपीटी का, कि चैट जीपीटी क्या कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। यस सर, विजिबल है। ओके 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 ओके। तो दिस इज द इंटरफेस, है ना, जो इंटरफेस चैट जीपीटी का। मैंने लॉगिन तो ऑलरेडी मेरे का सब लोग जानते ही होंगे लॉगिन कैसे करना, तो इसलिए लॉगिन में हम टाइम वेस्ट ना करके, अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है तो सबसे पहले गूगल पे जाएं, गूगल पे चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक आपका मोबाइल नंबर मांगेगा आपके वेरिफिकेशन के लिए, आपका ईमेल मांगेगा, और यू कैन लॉग इन फॉर द चैट जीपीटी, उसमें फिर लॉगिन हो जाएगा। और जो भी आप सर्च करेंगे वो जिस तरह से यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, तो यू कैन सेव योर सर्च हियर ना, आपका सर्च ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो अब हमने ये नया न्यू टैब ओपन किया है। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास इफ यू हैव सब टॉपिक्स, तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं जो प्रैक्टिस है, जो हमारी ट्रेनिंग है, वो उन टॉपिक्स पे करें, तो वो टॉपिक्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस टॉपिक्स पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आई थिंक
जो आप यू कैन राइट इन चैट बॉक्स योर टॉपिक्स, योर रिसर्च टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। तो हम उस रिसर्च टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, वरना हमारे पास तो टॉपिक्स है और हम चाहते हैं कि टॉपिक्स को आप टॉपिक्स को समझे कि एग्जैक्टली कि क्या टॉपिक है। आप जरूर लिखिए, प्लीज राइट डाउन योर टॉपिक्स, प्लीज राइट डाउन टॉपिक्स। अब तो अच्छा ठीक है, राइट डाउन योर टॉपिक्स। तो पहले हम पूछ लेते हैं कि ये चैट जीपीटी हमारे लिए क्या कर सकता है, हाँ? क्या कर सकता है? व्हाट कैन व्हाट कैन डू इन रिसर्च। ठीक है, व्हाट कैन डू इन रिसर्च फॉर यू, फॉर क्या, जो भी टॉपिक है, टॉपिक लिखिए प्लीज, राइट डाउन द टॉपिक इन चैट बॉक्स। आई थिंक तो शो नहीं कर रहा है ना स्क्रीन ना। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब शो कर रहा है। Yes. अच्छा अच्छा, तो आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली राइट डाउन योर रिसर्च टॉपिक। अपने रिसर्च टॉपिक कुछ है आपके पास, आपके माइंड में, जिस पे आप चाहते हैं कुछ करना, तो आई थिंक सो यू कैन राइट डाउन हियर। यस, यस, देयर इज नो एनी टॉपिक यू हैव। तो जो भी आपके माइंड में, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, जो भी आपके जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक है, तो आप इस चैट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आई थिंक देयर इज नो एनी टॉपिक। ओके ओके, तो फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि व्हाट कैन डू इन रिसर्च फॉर कास्ट कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो हमने कहा कि ठीक है कि जो कास्ट सिस्टम इन इंडिया है, उस पर हमारे लिए चैट जीपीटी क्या कर सकता है, व्हाट कैन डू इन रिसर्च फॉर द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो ये देखिए, पहला फर्स्ट ये है, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट हियर कि हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरवेंशंस, किसी ने थोड़ा सा कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन। ये तो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन इस पे ही करते हैं सर, सिद्दीकी सर। ओके, वेलकम। तो अब Yes. ठीक है, हम थोड़ा सा इस पे करते हैं, देखिए ठीक है, कि व्हाट कैन डू व्हाट कैन डू फॉर मी इन रिसर्च फॉर नॉट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन। ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारे लिए अब हम पूछ लेते हैं कि भाई चैट जीपीटी महोदय, आप हमारे लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन पर क्या कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कि आपका लिए क्या कर सकते हैं। आई असिस्ट यू फॉर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग रिवर। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्या दे दिया, पूरा एक 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 आपको एक पूरा खाका बना के तैयार दे दिया, आपको क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या क्या बताया उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो हम रिसर्च कर सकते हैं वो
clarify the mathematical concept related to the river basin modeling, such as the difference equations, numerical method optimizations, and statistical analysis. Model selections provide the guidance on choosing appropriate mathematical models for a specific aspect of the river basin dynamics, such as the hydrology, sediment, transport, and water quality. Numerical methods explain the help to implement the numerical method for the solving mathematical models, including the finite difference, finite elements, and other simulations techniques. Data analysis and processing assist with the data analysis technique, a statistical method of the processing of the hydrological and environment data related in the river basin modeling. Optimizations, provide the insight, the optimizations technique for the parameter calibrations and model validations, and literature review, help you explore relevant research paper, article, and books for the mathematical modeling of the river basins. क्या है? More calibrations of validations, guide through the, ठीक है, integration with the GIS, explain how to integrate the mathematical models with the geographic information system and GIS for the spatial analysis and visualizations. Environmental impact of assessment, discuss method for the assessing the environmental impact of the various scenarios is simulated through the mathematical model. Programming support, provide the assistant with the programming language and commonly used in the river basin modeling, such as the Python and MATLAB, or specialize the modeling software. Review and feedback, review your mathematical model, simulations, or research paper, providing a constructive feedback and suggestion for the improvement. तो इस तरह से आपको बता दिया इसने कि चैट जीपीटी कैन डू फॉर योर रिसर्च, है ना, क्या कर सकता है? ये सारी चीजों को आपको असिस्ट कर सकता है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, model selections, numerical methods, data analysis and processing, optimizations, literature review, model calibrations and validations, integration with GIC, environmental impact assessment, program support, review and feedback. तो अब क्या कह रहा है? When the seeking assistant, please provide the specified details about your research goal, the mathematical models you are working with, the type of the data you have, and specific challenges you are facing. This will be help me provide the more targeted and helpful information. तो आपको देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके दे दिया कि चैट जीपीटी कैन डू फॉर यू, क्या कर सकता है? ये सारी चीजों को आपको असिस्ट कर सकता है ना, सारी चीजों को असिस्ट कर सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम इससे कहते हैं कि ठीक है, आपने ये तो हमें सजेस्ट कर दिया है, तो अब हमें क्या करना है? चैट जीपीटी क्या करना? सजेस्ट मी some topics for research. किसके लिए? Suggest me some topic for the research. कौन सी रिसर्च है? क्या रिसर्च है ये? मैथमेटिकल रिवर्स ऑन बेसिस, ठीक है ना. अब हमने कहा कि सजेस्ट मी सम टॉपिक फॉर द रिसर्च फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑन द बेसिस. अब हमने इससे पूछा कि ठीक है, आपने बता दिया. यस, अब हमने कह दिया कि आपने ये तो बता दिया कि ठीक है, आपने हमें एक स्ट्रक्चर बता दिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें अब ये बताइए कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक सजेस्ट कीजिए फॉर रिसर्च, ठीक है, ठीक है, ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ पेपर. कुछ हमें ऐसे टॉपिक सजेस्ट किए जिसपे हम लोग रिसर्च कर सके, ठीक है ना. तो जब हमने ये प्रॉम्प्ट डाला तो ये क्या आ जाएगा? तो ये हमें बता देगा कि किस करते हैं कि आपके पास
क्या क्या टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किस क्या क्या टॉपिक्स है, देखिए ये सारे टॉपिक्स उसने यानी यानी आपको आपको द चैट जीपीटी प्रोवाइड द 15 टॉपिक्स विच यू कैन डू द रिसर्च। कैसे द हाइड्रो मॉडलिंग है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट फाइंडिंग, वाटर क्वालिटी मॉडलिंग, फ्लड रिस्क असेसमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट मॉडलिंग, इकोलॉजिकल मॉडलिंग, इंटीग्रेटेड watershed management, uncertainty of the analysis, multi मॉडलिंग। अब आपने कहा कि ठीक है, ये जो आपने जो हमें टॉपिक्स जो प्रोवाइड किए हैं, हमें इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो काइंडली रीजनरेट द टॉपिक्स। तो आपको रीजनरेट के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर एक जो निशान है, इस पे अगर आपने जो एक साइन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दिस टॉपिक विल बी रीजनरेटेड। तो ये सारे टॉपिक क्या हो जाएगा, रीजनरेटेड हो जाएंगे, है ना। अब आपने कहा ठीक है, ये सारे रीजनरेटेड हो गए। इसके बाद आपने क्या कहा, अब आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, अब मुझे ये तो सही है, लेकिन चैट जीपीटी महोदय आप मुझे प्रोवाइड क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया ऑन क्या होगा। आप आपने कहा कि क्रिएटिव आइडिया बताइए, प्रोवाइड क्रिएटिव आइडिया ऑन एबव टॉपिक्स। तो हमने कहा कि ठीक है, अब इतने तो बता दिया आपने, लेकिन अब हमें थोड़ा क्रिएटिव आइडिया बताइए, है ना। या प्रोवाइड क्रिएटिव आइडिया और एबव टॉपिक, या फिर जो हमने जो टॉपिक है इस पे कर सकते हैं, जो टॉपिक है हमने इस पे कर दिया, अगर एबव पर नहीं वो, लेकिन जब हम चैट जीपीटी में कोई चीज सर्च करते हैं तो वो सिस्टमेटिक तरीके से चलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइड द क्रिएटिव आइडिया ऑन मैथमेटिकल मॉडल ऑन बेसिस, या फिर यू कैन राइट हियर, ठीक है, या टॉपिक्स। तो ठीक है, तो आपने आपने कहा कि क्रिएटिव आइडिया, हमें ये आइडिया हमें समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि ठीक क्रिएटिव आइडिया, तो जो क्या है, चैट जीपीटी प्लीज प्रोवाइड अस। तो आपको क्रिएटिव आइडिया प्रोवाइड कर दिया ना, है ना, टॉपिक्स पर क्रिएटिव आइडिया प्रोवाइड कर दिया। ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन सपोर्ट आइडिया, मॉडलिंग ह्यूमन इन्वायरमेंटल, डाटा ड्राइविंग मॉडलिंग अप्रोचेस एंड मल्टी स्केल मॉडलिंग। तो ये सारी चीजें आप कहती है को ठीक है, हमें ये आइडिया तो आपने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अब हमें और ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए इस आइडिया में। तो यू कैन राइट हियर द काइंडली प्रोवाइड मोर इफेक्टिव आइडिया ऑन दिस with research and references। तो आपने कहा ठीक है, ये तो आपने कहा था, लेकिन अब हमें वो जो रिसर्चेस और उसके अकॉर्डिंग कोई इफेक्टिव आइडिया हमें विद रिसर्च एंड रेफरेंसेस फॉर, अगर आप चाहे तो टॉपिक डाल दो, अगर नहीं चाहो तो वो टॉपिक से पूरा आ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है, इस पे कर दिए। तो आपको चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड द, देखिए पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया रिसर्च ने, ठीक है, पूरा रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिया आपको, है ना, रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेड आउटकम। देखिए चैट जीपीटी क्या है, रिसर्च आइडिया इनहेंसिंग द हाइड्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑफ रिवर बेसिन थ्रू द मशीन लर्निंग एंड इंटीग्रेशंस, ठीक है ना। पूरा इंट्रोडक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर दिया, मेथोलॉजी प्रोवाइड कर दी, डाटा कलेक्शंस, मॉडल डेवलपमेंट, हाइब्रिड मॉडल इंटीग्रेशंस, एवोल्यूशंस एंड वैलिडेशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड रेफरेंसेस। लेकिन ये जो रेफरेंसेस है, हम इन रेफरेंसेस पे बिलीव ना करके हमें इन रेफरेंसेस को गूगल में जाकर सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो रिसर्च, जो रेफरेंसेस हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो एग्जैक्टली एक्यूरेट है या नहीं है,
ठीक है ना, वो सारी चीजें हम आगे आगे देखेंगे। तो हमें चेक करना पड़ता है कि कभी कभी होता है कि बहुत सारे रिसर्च जो रेफरेंसेस होते हैं चैट जीपीटी रॉन्ग प्रोवाइड करता है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, देखिए, रिसर्च एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग टू हाउ मशीन लर्निंग कैन complement the traditional hydrological modeling in river basins. The hybrid model in the anticipated to offer the improved predictions, especially in the scenarios with the limited data to evolving the environmental conditions. The study outcome could have implications for the enhancing water resource management and decision making in river basin context. मैडम, है ना? This research idea This research idea aligns with the growing trend of integrating machine learning into the hydrological modeling and provide the balance between the physical based understanding of the data driving. I think someone is मैडम नहीं रूम ना Siddiq sir, I think you are, can you unmute yourself? I can. थैंक यू वेरी मच सर। Sir, can you please, unmute yourself? Okay. So we are discussing about here the different ways कि किस तरह से हम लोग किसी भी मतलब इफेक्टिव आइडियाज को हमने उसके टॉपिक्स को हम सारी चीजों को यू कैन फाइंड आउट हियर, है ना। तो अब ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से हम लोग और इफेक्टिव आइडियाज को कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इफेक्टिव आइडियाज को चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग पा सकते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि ठीक है, ये तो बता दिया, लेकिन अब हमने कहा कि ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे इससे कि हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च करने के लिए हमें सब आउटलाइन प्रोजेक्ट का, यानी जो इसका आउटलाइन बताइए। तो आप पूछेंगे कि चैट जीपीटी महोदय, आई वांट टू research on एवं टॉपिक एंड टॉपिक क्या है, वो भी जो भी टॉपिक है एवं टॉपिक एंड, या फिर आपने लिखा ऑन, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, प्रोवाइड, यानी give me some outline this प्रोजेक्ट। ठीक है ना। अब हमने कहा ठीक है, अब मैं इस पे मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि ठीक है, अभी तक आपने बताया कि किस तरह से इफेक्टिव आइडियाज होने चाहिए, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, सारी चीजें। लेकिन अब मैंने कहा कि आई वांट टू रिसर्च ऑन द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन, गिव मी सम आउटलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो हमें क्या कीजिए, सम आउटलाइन, हमें कुछ आउटलाइन प्रोजेक्ट प्रोवाइड कीजिए। तो अब ये क्या करेगा, चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड यू द आउटलाइन, एग्जैक्टली कि आउटलाइन जो आउटलाइन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, तो वो आउटलाइन कैन प्रोवाइड यू इन वेरी सिस्टमेटिक मेथड विद इन 10 सेकेंड्स, है ना। ये जो आउटलाइन लिखने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ता है, वो विद इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड और 20 सेकेंड और 40 सेकेंड you can find out the exactly what is the outline of your project, outline of your research, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर सकती हैं, you can find out, you can see here क्या है आपको, the title enhancing the hydrological predictions and the river basin to the integrated the modeling approaches। एक आपने एक टॉपिक आपने एंटर किया
एक टेक्स्ट इंटर किया, उस टेक्स्ट में आपको पूरा एक टाइटल, आपको रिसर्च का टाइटल क्रिएट करके चैट जीपीटी ने दे दिया और बता दिया कि देखिए आउटलाइन क्या होना चाहिए एक रिसर्च की, ठीक है ना। तो रिसर्च की आउटलाइन क्या मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ और मुझे आउटलाइन दीजिए, तो आपको एक आउटलाइन क्रिएट करके दे दिया। द क्या आउटलाइन था? द टाइटल इनहेंसिंग हाइड्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस इन रिवर बेसिन थ्रू द इंटीग्रेटेड द मॉडलिंग अप्रोचेस। द नंबर वन इज इंट्रोडक्शंस, ठीक है ना। बैकग्राउंड भी आपको प्रोवाइड कर दिया, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, चैलेंजिंग एक्यूरेसी, मॉडलिंग टू द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक फॉर बेसिन यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ऑब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करके दे दिया, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी भी आपको प्रोवाइड करके दे दिया, लिटरेचर रिव्यू भी बता दिया, ओवरव्यू हाइड्रोलॉजिकल, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट नंबर वन इज द इंट्रोडक्शन, नंबर टू द लिटरेचर रिव्यू and overview of the hydrological model, limitations of the traditions model, advance of the modeling technique, or the third one is the methodology, study of area and data collection, traditional hydrological modeling and machines learning modeling, and integrations of the model, evaluations of the metric, result and analysis. Number fourth is result and analysis, evaluations of the metric, comparison modeling, and discussion, interpretations of the finding, discussion the implication of the result for the hydrological predictions in the selections of the river basin, explore the region behind the performance differences among the model robustness and practical applications. And last fifth one is the conclusion, summary of findings, and a contribution to the field, recommendation of the future research, references. What are the references here? Including the comprehensive list of the references cited throughout the research project. And seventh is the appendices, including the any supplementary material, additional data, or detailed model parameters used in the research. तो आपको 7 चैप्टर्स जनरेट करके दे दिया चैट जीपीटी ने, वो भी विद इन ओनली 20 and 30 सेकंड, है ना। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके दे दी, पूरा आउटलाइन क्लियर हो गया आपका। This outline provides the comprehensive structure for your research project, ensure that each section is detailed, well referenced, and contributed to the overall coherence and flow of the research narrative, है ना। सारी चीजों को बता दिया कि आपकी रिसर्च का आउटलाइन ये होगा, आपका स्ट्रक्चर ये होगा, यू कैन डू योर रिसर्च बेस्ड ऑन द दिस आउटलाइन, ठीक है। तो अब ठीक है, अब ये तो सच चीजें बता दिया आपको, लेकिन अब आपने कहा कि ठीक है ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन महोदय हमें ये बताइए कि हम किस तरह से, जो ये टॉपिक है तो हम इसका इंट्रोडक्शंस कैसे लिखें, इंट्रोडक्शंस क्या हो। तो आपने कहा कि प्रोवाइड मी इंट्रोडक्शंस, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑन इस पर 4। अब क्या, अब आपको कहना है कि ठीक है मुझे 1000 वर्ड्स में चाहिए, इन 1000 वर्ड्स। आप देखा, प्रोवाइड मी द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन इन 2000, प्रोवाइड मी द इंट्रोडक्शन फॉर रिसर्च। अब रिसर्च वो क्या हो सकता है आपका, आपकी रिसर्च थीसिस के बेस पे भी हो सकता है, आपकी रिसर्च उसके एक पेपर के बेस में भी हो सकते हैं, जो भी बेस में आपको लगा। लेकिन आपने कहा कि ठीक है 1000 वर्ड्स में, प्लीज प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन फॉर द रिसर्च ऑन द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन इन 1000 वर्ड्स। तो आपको 1000 वर्ड्स में ये देखिए, आपको चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड द इंट्रोडक्शंस ऑफ द दिस टॉपिक इन 1000 वर्ड्स। और आप देख लीजिए टाइम, देखिए टाइम कितने टाइम में आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन
कर सकता है। देखिए देखिए पूरा बैकग्राउंड बता देगा आपको, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स बता देगा सारे, है ना, इंट्रोडक्शन जो भी ना इंट्रोडक्शन लिखना जो सारी चीज बता देगा, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी पूरी जो आपने ऊपर सारा लिटरेचर रिव्यू है ना, पूरा लिटरेचर रिव्यू बता देगा पूरा, है ना, सारी चीजें आपको बता देगा। ये बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें से आपको यू कैन गेट इट। मैथोलॉजी बता देगा, देखिए मैथोलॉजी बता दिया आपको, है ना, मशीन लर्निंग मॉडल्स, है ना, ये सारी इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो अब आपने कहा कि ठीक है ये तो बहुत सही है, आपने ये सारी चीजें बताई है। अब आपने कहा ठीक है ये तो सही है, अब आपने कहा कि आप ये बताइए कि कैन यू कैन यू टेल मी, क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस, क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ एवब टॉपिक्स फॉर रिसर्च। ठीक है ना, अब आपने कहा कि रिसर्च के लिए जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी टॉपिक्स हमने दिया था, उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इस पर रिसर्च करें। तो चैट जीपीटी कैन गिव यू आंसर वेरी क्विकली कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस टॉपिक। तो देखिए आपको क्या कर लेगा, आपको अब देखिए पूरा इंपॉर्टेंस बता रहा है, ये इंपॉर्टेंस क्या है आपके इस टॉपिक की, व्हाई यू चूज दिस टॉपिक फॉर द रिसर्च। ठीक है ना, तो ये ना क्या क्या कर दिया आपको, 10 पॉइंट्स आपको क्रिएट करके दे दिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक फॉर द रिसर्च। क्या है, the proposed research topic enhancing hydrological predictions in the river basins through the integrated modeling approaches hold a significant approach for the several reasons। क्या है, improve water resource management, enhance the flood predictions, climate change adaptations, ecological conservations, data driven decision making, synergies between the traditional modern approaches, optimizations of the water resource allocation, practical applications for environmental agency contributed to the scientific knowledge, educations and outreach opportunities। ठीक है, in summary the proposal research is the important for the its potential to the address critical issue related to the water resource management, climate change adaptations and ecosystem conservations. It seek to the advanced modeling techniques and contribute valuable insight that can be applied in real world scenarios benefiting environmental agency, policy maker and broader community. So you can find out here each and everything why it is important for the research। क्यों ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक का रिसर्च के लिए। तो चैट जीपीटी कैन टेल यू कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक फॉर द रिसर्च, हमको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिल सकता है, हम लोग किस किस फील्ड में क्या क्या चीज को, हम किस किस चीज को कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक नॉलेज, एजुकेशन आउटरीच अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ द, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक फॉर द रिसर्च। ठीक है ना, अब हमने कहा कि ठीक है आपने ये हमें तो बता दिया कि चैट जीपीटी महोदय आपने ये तो बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है, अब हमें क्या बताइए, अब हमें इसके इंट्रोडक्शंस को ऐसा राइट कीजिए जो रिसर्च में हो। तो यू कैन राइट डाउन इन द प्रॉम्प्ट प्रोवाइड मी इंट्रोडक्शन provide me introduction, क्या कर सकता है, इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या कहते हैं, प्रोवाइड मी द इंट्रोडक्शंस इंक्लूडिंग
आज सिंपल इंट्रोडक्शन तो बता दिया है, लेकिन हमें क्या है इंक्लूडिंग, क्या किस तरह बता इन किस तरह से करना है हमें, इंक्लूडिंग रिसर्च बैकग्राउंड, research background, research problem and gap in existing ठीक है। तो आपने कहा एग्जिस्टेंट लिटरेचर में जो भी चीजें आपको हमें बताइए, नहीं इसका हमें बताइए कि रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम और गैप इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर में क्या है, किसका, प्रोवाइड विद इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग, ठीक है, किस चीज का, जिसके बारे में हम ऊपर जिस टॉपिक के बारे में वी आर डिस्कसिंग इन एबव टॉपिक, ठीक है ना। तो हमें ये पूरा क्या कर देगा, हमें रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम्स इन गैप इन एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, बता देगा, पूरा बता देगा। देखिए रिसर्च बैकग्राउंड, ठीक है, रिसर्च बैकग्राउंड क्या है इसका, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है इनकी, ठीक है ना, गैप इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है इसका, ठीक है ना, वो सारी चीजों को हमें इसने डिस्क्राइब कर दिया, हमें इसको बता दिया, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें बता दी। अब हम कह रहे हैं ठीक है, ये तो बता दिया आपने हमें, आपने बता दिया कि ठीक है इसकी रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है और गैप इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है, तो ये तो सब बता दिया। लेकिन अब हमें कैन यू, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई बहुत सारी चीजें जुड़वाना चाह रहे हैं अपने मतलब से, कैन यू ऐड, क्या कर सकता है, कैन यू ऐड कैन यू ऐड मोर explanation about this topic with explanations about this topic with the क्या, citation, ठीक है। आपने कहा ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और ये बताइए कि ये इसमें तो साइटेशंस भी आप हमें प्रोवाइड कर दिए। तो देखिए चैट जीपीटी का यही कमाल है, देखिए आपको अब मैंने बताया वही कि आपका टाइम कितना सेव हो जाएगा, इतना सारा मटेरियल लिखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, यू कैन इमेजिन इट, बट in the with the help of the chat gpt you can find out that this your reply of the your queries within the seconds, not a minute, within a second, ठीक है ना। तो देखिए अब पूरा पूरा आपको, कैन यू मोर एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक विद द साइटेशंस, ठीक है ना। तो उन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक्स को, है ना, और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक को, रिसर्च प्रॉब्लम बता दिया, वो जो मैंने बताया वो सारी चीजें बताया, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना, गैप इन एग्जिस्टिंग। लेकिन इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद देखिए बहुत सारा ऊपर वाले में एक्सप्लेन किया था और ये छोटा हुआ, ठीक है। देखिए ये सारे आपको, ये पूरा, है ना, पूरा क्या कर दिया है, ये आपको पूरा साइटेशंस भी आपको प्रोवाइड। अगर लेकिन आप कहेंगे कि रेफरेंसेस लिख दिया, तो रेफरेंसेस वो क्या करेगा आपको बाद में विद रेफरेंसेस को क्या कर देगा वो बाद में आपको रेफरेंसेस आपको रेफरेंसेस में भी ये आपको क्या कर सकता है, पूरा रेफरेंसेस में आपको, है ना। देखिए अभी तो हमने कहा कि भाई ठीक है इसको एक्सप्लेन कर लिए मोर, हमने एक्सप्लेन करके इसको और मैटर को बढ़ा दिया। लेकिन अगर हमें कहा कि नहीं यार ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन जो है ना इन्हें बहुत शॉर्ट करना है ना, बहुत कम करना है, तो हम भी इसको क्या कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा था लिटरेचर रिव्यू एंड समराइजिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, हम करते, देखिए हम बता देते, देखिए देखिए हर चीज में आपको ये सारी चीजों का रेफरेंसेस, यू कैन फाइंड आउट द रेफरेंसेस हियर, यू कैन फाइंड आउट द रेफरेंसेस हियर। लेकिन इन रेफरेंसेस पे अगर आपको ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है, whenever the chat gpt give you the references, you please you check it, जब तक आप चेक नहीं करेंगे
आपको कोई समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेक इट इन क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी गो टू द गूगल और गूगल स्कॉलर। ठीक है ना, गूगल पे हमने जाया गए, तो जाने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से वी कैन पेस्ट हियर, फाइंड आउट हियर। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं, हमें आता ही नहीं आता है। पैरामीटर एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी, देखिए ये है स्प्रिंगर बेस्ड इन हायरार्की मॉडल यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस रेफरेंस एबिलिटी इन द कैचलर मॉडल, ये इसका मतलब ये है। ठीक है ना, अब इसमें ये ऑलरेडी एबिलिटी गेट एआई पावर ओवरव्यू ऑन दिस सर्च। ठीक है ना, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम यू कैन गूगल साइटेशंस, गूगल स्कॉलर्स। ठीक है, गूगल स्कॉलर्स में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक इज इट इन गूगल स्कॉलर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब ये क्या है, यू कैन, ये फिर क्या कर रहा है, ये मैरी एंड पील का ये हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग चेंजिंग, ये तो ये आप आज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जॉर्गिन वाइन कंपेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग वी कैन चेक। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो आपने आपने कहा कि ठीक है, आपने ये तो हमें बता दिया। ठीक है, आपने ये बता दिया, किसने, क्या जो चैट जीपीटी महोदय, यू टेल अस एग्जैक्टली व्हाट इज द रिसर्च। ठीक है ना, तो अब हमने क्या कर दिया, ये तो हमें बता दिया गया कि डाटा एनालिसिस अप्रोचेस सिस्टमेटिक क्वालिटी, हाँ ये तो हमें बता दिया गया। क्या बता दिया गया कि ये हमें, ये कहाँ पहुंचे, Status observation. हाँ ये जस्ट मिनट, हाँ तो ठीक है, कैन यू ऐड मी सम एक्सप्लेनेशन, तो उसने हमें एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, टॉपिक्स तो बता दो, रेफरेंसेस बता दिया। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि अब इसको क्या करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट दिस introductions इन कितना, 5 अब इसको शॉर्ट करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप यू कैन क्या कर सकते हैं, राइट दिस इंट्रोडक्शन इन 500 वर्ड। तो ये सारे इंट्रोडक्शन 500 वर्ड्स के अंदर, आपको 500 वर्ड, 300 वर्ड, 200 वर्ड, यू कैन फाइंड आउट इट इन बड़ी, देखिए बहुत सारे शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना, ये ना इंट्रोडक्शन है 500 वर्ड्स में सारी उन्होंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, इसमें कुछ हेडिंग कुछ वगैरह नहीं था, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है ना, 500 वर्ड्स इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपको रीराइट करना चाहते हैं, कि ठीक है आप इसको क्या कीजिए कि रीराइट लिखे, तो रीराइट ना, तो काइंडली रीराइट दिस, तो आपने कहा काइंडली रीराइट दिस, तो ये आपको क्या कर देगा, रीराइट कर देगा, है ना, पैराफ्रेजिंग कर देगा, है पैराफ्रेजिंग कर देगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, चैट जीपीटी देखिए आपको रीराइट कर दिया पूरा, है ना, पूरी सारी चीज़ों को रीराइट किया। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है, ये तो आपने हमें बता दिया, ये तो हम सीख गए, ये तो हम समझ गए कि एग्जैक्टली कि किस तरह से पैराफ्रेजिंग होती है, रीराइटिंग होती है, समराइजेशन होता है, और एक्सप्लेनेशन होता है कि हम किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने कहा कि ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब हमें आप ये बताइए चैट जीपीटी महोदय कि कैन यू सजेस्ट मी ए सुटेबल बेस्ड थ्योरी फॉर दिस रिसर्च, तो हमें क्या बता सकते हैं आप, क्या है इसकी सुटेबल थ्योरी क्या है, तो कैन
can you या suggest me suitable क्या space theory for, ठीक है। तो अब आपने ये तो सही सारी चीजें बता दी, इंट्रोडक्शन बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली के सुटेबल बेस्ड थ्योरी फॉर दिस रिसर्च? तो आप क्या करेगा? आप देखिए, आपको चैट जीपीटी का कमाल। चैट जीपीटी आपको क्या करेगा? चैट जीपीटी आपको वो सारी हाई आइडियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है, मशीन लर्निंग थ्योरी, ठीक है, इंटीग्रेशन थ्योरी, सारी चीजें आपको बता देगा, ठीक है। एंड रेफरेंसेस These theory provide a comprehensive foundations for your research, integrated the principles of the hydrology with the adaptability and predictive power of machine learning, है ना। तो ये आपको बता देगा पूरा कि किस तरह से आपको, ठीक है ना, किस तरह से इसकी थ्योरी आपको बता सकता है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, ये तो थ्योरी तो आपने बता दी है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब आप ये तो प्रिंसिपल हमने कहा कि प्लीज काइंडली एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी कि किसमें, विथ या फिर फॉर माय रिसर्च, ठीक है। अब आपने कहा कि ठीक है, इस हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी को मोर एक्सप्लेन करो। आप एक्सप्लेन करो कि हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी इसका क्या है। अभी तो शॉर्ट में दे दिया, लेकिन हम बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना। काइंडली एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट विथ क्या है, विथ डेफिनेशंस, ठीक है। क्या है, किसके लिए? इसमें आप डेफिनेशन भी दीजिए, हैं, तो इसमें आप डेफिनेशन भी दीजिए, एंड मेंशन नेम ऑफ किस चीज का थिंकर, जो भी साइंटिस्ट है, थिंकर्स, उनका नाम भी दीजिए, डिफाइन भी कीजिए, और उसको थ्योरी का एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इस थ्योरी के बारे में देखिए बहुत ज्यादा जल्दी एक्सप्लेनेशंस होकर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशंस, पूरा डेफिनेशंस क्या है, जनरल डेफिनेशंस, की कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसपिरेशंस, डेफिनेशंस, एलिवेट सारी इन्फिल्ट्रेशंस, राउंड ऑफ स्ट्रीम रिवर डिस्चार्जेस, डेफिनेशंस, थिंकर्स एंड हाइड्रोलॉजिक थियोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी, थिंकर्स, देखिए ये है, ठीक है, अल्बर्ट रमसन, ये सब पूरा दे दिया है। कंट्रीब्यूटर द, इसके सारे का पूरा कंट्रीब्यूशन, हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी हैज द शेप ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द थिंकर इन द, ठीक है, ये सारी चीजों का लोगों का थिंकर्स भी दे दिए, इनके डेफिनेशंस भी नहीं। अब आपने कहा कि ठीक है, तो डेफिनेशंस जो दी है ना, वो आपने डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं दी। तो आप क्या कर लीजिए, आप चैट जीपीटी से कीजिए, काइंडली प्रोवाइड मी डेफिनेशन विथ, क्या डेफिनेशन विथ क्या, थिंकर। तो आपने कहा कि ठीक है, हमें थिंकर जो है ना, जिन लोगों ने जो डेफिनेशन दी है उसको हम प्रोवाइड कर दिए, तो आपको वो पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। थिंकर क्या है उसको, ड्रेनेज पैटर्न। हाँ, ठीक है ना। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकर्स, ये पूरा आपको आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड, द कॉन्सेप्ट, ये पूरा द डेफिनेशन, द हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी, प्रिंसिपल, मैथमेटिकल, ये यू कैन
मॉडलिंग विद रिवर, ये पूरा यू कैन, ठीक है, फाइंड आउट हियर, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ठीक है ये 2-3 लोगों का तो दे दिया आपने, लेकिन अब हमें कहते हैं आई want more definition for my research, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें और डेफिनेशन चाहिए, तो हमने क्या कहा, ठीक है, ठीक है, हमारे उसके लिए बहुत सारी डेफिनेशंस आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो बहुत सारी डेफिनेशंस को आपको है, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर देगा, बहुत सारी डेफिनेशंस प्रोवाइड कर देगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको देखिए, बहुत सारी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी आपको, बहुत सारी और बहुत सारी सिग्निफिकेंट भी बता दिया, वो सारी चीजें बता दी। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ये तो ठीक है, अब सजेस्ट मी द मोस्ट appropriate scale for दिस टॉपिक। टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, जो भी टॉपिक है आपका, फॉर दिस, फॉर टॉपिक। hydrological modeling. तो क्या आप टॉपिक, अगर जरूरी नहीं है कि आप अपना पूरा टॉपिक को इसमें टाइप कर दे, वो आपको पूरा रीड कर रहा है, यानी चैट जीपीटी आपको रीड कर रहा है जो आपने फ्रॉम बिगिनिंग ना। तो यू कैन राइट हियर द अबव टॉपिक, और अबव टॉपिक क्या है, वी आर डिस्कस अबाउट द, वो जो टॉपिक आप बता रहे हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये हमें बता देगा वाटरशेड, स्मॉल स्केल, स्केल डिस्क्रिप्शंस, एडवांटेज, कंसीडरेशंस, ये सारे स्किल्स हमें बता दिए कि हम वी कैन डू, ठीक है, हम लोग होल बेसिन, लार्ज स्केल, इस तरह के हम लोग स्केल कर सकते हैं। चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल, रिसर्च ऑब्जेक्ट, डाटा अवेलेबिलिटी, ये पॉलिसी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये तो अब हमने शुरू से लेके आखिरी तक वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह से हमने एक टॉपिक को लिया यहाँ पर, है ना। वो टॉपिक क्या था, जस्ट वी विल रिफ्रेश इट, कि किस तरह से हमने लिया और कैसे किया, कहाँ पर पहुंचे हम, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, है ना। हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमें गूगल पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने जब हमने शुरू किया तो शुरू कहाँ से किया, व्हाट कैन डू फॉर मी रिसर्च फॉर द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन, ठीक है ना। हमने यहाँ से शुरू किया, जब हमने यहाँ से शुरू किया तो चैट जीपीटी ने पूरा पूरा सिस्टम वो बता दिया कि आपके लिए ये क्या कर सकता है चैट जीपीटी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, सजेस्ट मी सम टॉपिक फॉर द रिसर्च ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसने कहा कि ठीक है, मैथमेटिक मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन पर हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक सजेस्ट कर दिए, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि ठीक है, प्रोवाइड माई क्रिएटिव आइडिया ऑफ एबव टॉपिक, तो उसने हमें क्या किया, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज को हमें बता दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, आप इसके साथ ही हमें बताइए कि काइंडली प्रोवाइड द मोर इफेक्टिव आइडिया ऑन द दिस विद द रिसर्च एंड रेफरेंसेस ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर। हम इसके बारे में आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव आइडियाज को हमें कहते, तो उसने हमें इफेक्टिव आइडियाज को सजेस्ट कर दिया कि बेसिकली कैसे आप, किस तरह से आप रिसर्च को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, आई वांट टू रिसर्च ऑन द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द रिवर बेसिन, गिव मी सम आउटलाइन दिस प्रोजेक्ट। तो आपने क्या कहा, उसने आपको एक प्रोजेक्ट की आउटलाइन को बता दिया कि आपके प्रोजेक्ट की आउटलाइन ये है, यू कैन डू योर रिसर्च अकॉर्डिंग टू दीज मतलब आउटलाइंस, ठीक है।
इसके बाद हमने पूछा कि ठीक है, अब हमें बताइए प्रोवाइड में इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च ऑन। अब हमने कहा कि ठीक है, आप ये सारी चीजें बता दी, लेकिन हमें अब इसके बारे में आप ये बताइए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए कि हम इसको इंट्रोडक्शन को क्या लिखे, कैसे लिखे। तो उसने आपको चेंज करके एक 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 मतलब टॉपिक को चेंज करने के साथ साथ, बहुत मॉडिफाई करने के साथ साथ आपको बता दिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी बता दिया, लिटरेचर रिव्यू बता दिया, लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशंस मॉडल बता दिया, एडवांसमेंट इन मॉडलिंग टेक्निक बता दिया, इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडल इन हाइड्रोलॉजी बता दिया, रिमोट सेंसिंग एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस बता दिया, मेथोलॉजी क्या है, स्टडी एरिया एंड डाटा कलेक्शंस कैसे होगा, ट्रेडिशंस हाइड्रोलॉजी मॉडलिंग क्या है ना, मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडल्स क्या है। ठीक है ना। फिर आपने पूछा कि ठीक है, यू कैन टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक फॉर रिसर्च। तो उसने बता दिया कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक का, इस टॉपिक को हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस पर हम डिस्कशन क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है ना। तो हमें इम्पोर्टेंस बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने कहा प्रोवाइड में इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग रिसर्च बैकग्राउंड। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब हमने कहा कि ठीक है, रिसर्च बैकग्राउंड और रिसर्च प्रॉब्लम एंड गैप इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो इन सारी चीजों के बारे में उसने हमें, ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन हमें बता दिया, बहुत अच्छे से लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज, रिसर्च बैकग्राउंड बता दिया, रिसर्च प्रॉब्लम्स बता दी, ठीक है ना, और गैप इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर बता दिया। ठीक है। फिर हमने पूछा कि ठीक है, अब ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमें मुझे और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और हमें रेफरेंसेस भी चाहिए। तो उसने आपको एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ, है ना, मोर एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ आपको क्या कर दिया, आपको आपको रेफरेंसेस भी दे दिए। ठीक है ना, रेफरेंसेस भी दे दिए। ठीक है ना। अब आपने कहा राइट इंट्रोडक्शन इन द 500 वर्ड्स। अब ठीक है, हमें 1000 या 2000 3000 वर्ड्स में नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ राइट इन द इंट्रोडक्शन इन 500 वर्ड्स। तो ये क्या कर लेगा, आपको 500 वर्ड्स में पूरा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दे देगा। ठीक है। आपने कहा ठीक है, अब इस वाले इंट्रोडक्शन को रिराइट कीजिए। ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, दोबारा से लिखिए। तो उसने आपको फिर से वर्डिंग चेंज करने के बाद, आपको सेंटेंसेस चेंज करने के बाद, फिर दोबारा से इसकी पैराफ्रेसिंग कर दी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने कहा कि टी सजेस्ट मी सुटेबल बेस्ड थ्योरी ऑफ फॉर दिस रिसर्च। अब आपने कहा कि ठीक है, सजेस्ट मी सुटेबल बेस्ड थ्योरी ऑफ दिस रिसर्च के बारे में आप बताइए कि कौन सी सुटेबल थ्योरीज इस रिसर्च में हमारे लिए काम आ सकती हैं। तो चैट जीपीटी ने आपको विद इन द 30 सेकेंड सजेस्ट यू दैट देयर आर थ्री थ्योरी, हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी, मशीन लर्निंग थ्योरी, ठीक है, इंटीग्रेशन थ्योरीज। आपको 3 थ्योरीज के बारे में बता दिया, और आपको साथ साथ उसने रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है ना, ये रेफरेंसेस फिजिकल बेस ऑफ वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मॉडलिंग बेस ऑफ द हाइड्रोलॉजी, ये सारे रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड कर दिए। अब कहा कि काइंडली एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी। आपने कहा ठीक है, अब हमें हाइड्रोलॉजिक थ्योरी के बारे में बताइए, हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट विद द डेफिनेशंस मेंशंस नेम ऑफ द थिंकर। तो उसने सारा आपको बता दिया कि थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवर बेसिंग मॉडलिंग हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी। तो पूरा आपको इसने एक की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या टेक्नोलॉजिकल टर्म्स इसमें है, थियोलॉजिकल बॉडी क्या है, थिंकर्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में थिंकर्स के दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमें और थिंकर्स चाहिए, तो वो और थिंकर्स के बारे में आपको दे देगा। तो अब लास्ट में क्या है, कैन यू प्रोवाइड मी द डेफिनेशन विद द थिंकर। तो आपने उसने क्या किया, ठीक है ना, इन्फ्लेटेड कैपेसिटी बाय रॉबर्ट हर्सन के बारे में उसने डेफिनेशन दे दी, कॉन्सेप्ट हर्टन पूरा आपको इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया ना। ठीक है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया, बताया कि ये कब से कब तक थे इनका। ठीक है ना, इसके बारे में आपने पूछा, ठीक है, आई वांट टू डू मोर डेफिनेशन फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में उन्होंने और डेफिनेशंस को प्रोवाइड कर दिया। यू कैन यूज दिस प्रोवाइड दिस डेफिनेशंस फॉर योर रिसर्च पर्पसेस। वो सारी चीजों को उसने एलोबरेट करके सारी चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सजेस्ट मी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल फॉर द एबव टॉपिक। ठीक है, अब हमने यहाँ तक जाना और हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमें कुछ सजेस्ट कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल फॉर द एबव टॉपिक। तो उसने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्केल्स अप्रोप्रिएट स्केल्स है इसके। ये सारा डिस्कशन, सारी चीज आपको बता दिया, एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा एलोबरेट करके दे दिया। और अगर इसके बारे में और कुछ चीज और कुछ अगर आप चाहते हैं और कुछ आपके माइंड में है जो आपके कुछ है, क्योंकि जो आप रिसर्च कर रहे हैं ना, हम तो भाई आपको एक प्रैक्टिकल करके एक सैंपल बता सकते हैं कि यू कैन डू इट, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन एवर यू आर रिसर्चिंग एनी टॉपिक, तो आपको क्या करना है, तो आपको उन टॉपिक्स को उन 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 टॉपिक्स को, उन डेफिनेशंस को, उन थ्योरीज को बहुत इजीली समझना है। और इजीली समझने के बाद आपके लिए चैट जीपीटी ओनली क्या कर सकता है, आपको सिर्फ ये मदद कर सकता है, आपको सिर्फ क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन ये आपका दिमाग नहीं हो सकता। तो इसलिए चैट जीपीटी का जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट आप लें, उसको बहुत सावधानी की तरह से, बहुत केयरफुल तरीके से आपको पढ़ना है। और उस पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है कि जो कंटेंट आप ले रहे हैं उसको चेक करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि आंखें बंद करके आपने चैट जीपीटी के कंटेंट को उठाया और आपने अपने रिसर्च पेपर्स में या रिसर्च में या कोई भी प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं उसमें आपने पेस्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। चैट जीपीटी कैन हेल्प यू, लेकिन चैट जीपीटी आपकी सिर्फ मदद करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ कैन यूज द चैट जीपीटी फॉर योर रिसर्च इन मॉडर्न रिसर्च, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थ्योरी है जिसके बारे में हम बहुत सारा सिंपली तरीके से बहुत सारी बुक्स में ढूंढते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारा टाइम हमें खर्च करना पड़ता है। लेकिन चैट जीपीटी आपको विद इन अ सेकेंड, विद इन द 5 सेकेंड, ये आपकी सारी जो भी आपका लार्ज स्केल डाटा है उसको आपके अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है और आपकी स्क्रीन पर ये दे देता है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा इसमें चैट जीपीटी के यूज करने के दौरान समझने की जरूरत है कि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है। आप एक स्क्रीन पे देखें, एक नीचे चैट जीपीटी का एक मैसेज है, चैट जीपीटी कैन मेक द मिस्टेक कंसीडर चेकिंग इंपोर्टेंस इंफॉर्मेशन। चैट जीपीटी ने क्लियरली कह दिया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसमें मिस्टेक हो सकती हैं। उन मिस्टेक को सही करने के लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी प्रोवाइड कराता है वो जनवरी 2022 तक की इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास अवेलेबल है। उसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है, इसकी अपनी कुछ लिमिट है। ठीक है, तो वो सारा डाटा आपका इसमें जनवरी, पहले तो सितंबर 2021 तक का, लेकिन उन्होंने अपडेट किया है और अपडेट करने के लिए जनवरी 2022 का जो डाटा है वो इसमें अवेलेबल है। तो जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे और चैट जीपीटी एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आपको इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आई एम यूजिंग वर्ड सावधान केयरफुली, वो इसीलिए मैं बार बार आपको सावधान जो वर्ड का यूज कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको चैट जीपीटी से रिसर्च के दौरान सर्च करने वाला कंटेंट को आप बहुत केयरफुली देखें और उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसको आप अपने यूज में ले सकते हैं ना। बहुत सारे सेंटेंस की पैराफ्रेसिंग भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं। डाटा को मैंने आप पहले शुरू में बताया कि डाटा को आप इससे डाटा आप ले नहीं सकते, लेकिन आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा को आप देख सकते हैं। यानी डाटा इससे सर्वे करवा नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे सर्वे के डाटा अवेलेबल ऑन दिस चैट जीपीटी।
तो हमें चैट जीपीटी में ये सारी चीजों की, सारी बातों की ध्यान रखने की बहुत बहुत जरूरत है। आज हमने देखा, हमने शुरू से लेके हमने एक टॉपिक पर, हमने एक ही स्क्रीन पर एक टॉपिक पर डिस्कशन किया, और हम इस तरह से चैट जीपीटी में हर एक टॉपिक पर हम बहुत लॉन्ग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह से चैट बॉट है, जो आप कह रहे हैं उसका आंसर ये आपको दे देता है। तो हम जो भी हमारा कंटेंट होगा चैट जीपीटी में, जो हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है, इस डैशबोर्ड में ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा ये सेव हो जाएगा। जब भी अगर आप चाहेंगे तभी भी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड पे बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं, हमने यहाँ पर सर्च किए, और सर्च करने के बाद हमारे टॉपिक यहाँ पर वो सारे सेव हो गए। एक्चुअली जो कास्ट रिसर्च रुपल में कास्ट रिसर्च है, इसलिए वो सेव हो गया, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चैट जीपीटी जो है ना, ये 3.5 वर्जन है ना। पहले 2.44 वर्जन था, 3.5 हो गया, और इससे ज्यादा अपग्रेड वर्जन क्या है, 4 क्या है, 4 को आपको पैसे अपग्रेड करना दे। अपग्रेड यार, अपग्रेड का देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, अपग्रेड गेट चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी 4 अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, आपको अपनी जेब ढीली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फ्री वर्जन क्या है, फॉर पीपल जस्ट गेटिंग द स्टार्ट विद द चैट जीपीटी, अनलिमिटेड मैसेज इंटरैक्शंस एंड हिस्ट्री, access of our ChatGPT 3.1 model, access on the web, iOS and Android, ठीक है ना। तो और जो आपका क्या है, साइन अप फॉर वेट लिस्ट, ठीक है ना। ये क्या है, आपका प्लस है, प्लस मतलब ये 4, यानी चैट जीपीटी क्या 4, एक्सेस फॉर द चैट जीपीटी 4 अवर मोस्ट कैपेबल मॉडल। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है। ब्राउज, क्रिएट एंड यूज चैट जीपीटी, एक्सेस द एडिशनल टूल्स लाइक डेल ई ब्राउजिंग, एडवांस डाटा एनालाइज एंड मोर। बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है। तो जब अगर आपको बहुत जरूरत है चैट जीपीटी 4 की, यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 3.5 चैट जीपीटी 3.5 इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है ना। अब आज तक हमने ये देखा कि सजेस्ट और द मोस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट स्किल तक हमने जाना कि इस रिसर्च में स्किल तक हमने कैसे। अब कल हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डाटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हम सर्च करें। हम लोग इसमें कल हम ये भी जानेंगे कि हम एक टेबल को कैसे क्रिएट करें, टेबल को कैसे क्रिएट करने के कैसे तरह से एनालिसिस करें, ठीक है ना। हम किस तरह से किसी भी कंटेंट को समराइज रीराइट का तो मैंने बता ही दिया है आपको, है ना। मोर एलेबोरेट किस तरह से करें, है ना। बहुत सारे जो रिसर्च के टूल्स है, हम उसको किस तरह से, ठीक है ना, हम किस तरह इंटरप्रेटेड कैसे करें, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस कैसे करें, ठीक है, डिस्कशन कैसे करें, हम डिस्कशन कैसे करें, ठीक है, और आंसर को रिपीट कैसे करें, टाइम एंड सम साइटेशंस के बारे में कुछ बता दिया हमने। रिसर्च डिजाइन क्या है उसके बारे में हम वी विल डिस्कस, रिसर्च डिजाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिसर्च पेपर्स कैसे कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं उसके बारे में करेंगे, है ना। आर्टिकल्स को किस तरह से लिख सकते हैं, और हम कैसे हम लोग जब क्वेश्चन आंसर, जब क्वेश्चन हम जब इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम कैसे कैसे मतलब रिसर्च में हम लोग जो भी आपके दिमाग में है ना, माइंड में, हम कर सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ से हो सकती है, ठीक है ना, सेंटेंसेस करेक्शंस कैसे हो सकते हैं, आर्टिकल है ना, जो रिसर्च बैकग्राउंड एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स विद द रेफरेंसेस, वो हमने रिसर्च बैकग्राउंड रिसर्च के बारे में बता दिया, लेकिन हम और एलोबरेट करेंगे। लेकिन ये सारी चीजों को हम किस में डिस्कस करेंगे, कल हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इन गूगल बार्ड। जो हमारा दूसरा जो टूल होगा, एआई टूल होगा, वो होगा गूगल बार्ड। वो गूगल बार्ड जो गूगल ने क्रिएट किया है, गूगल के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उस डिफरेंसेस को थोड़ा सा हम कल समझेंगे, उसके बाद हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। तो नाउ दिस सेशन इज एंडेड हियर।
अगर और जो भी जिन लोगों ने जो कुछ लोगों ने और टॉपिक भेजे थे बाद में, तो आई थिंक देखता हूँ मैं कौन से टॉपिक है, वी विल डिस्कस टुमारो। आज हमने एक ही टॉपिक पर डिस्कस किया, अगर हम बहुत सारे टॉपिक पर जाते तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता। अब लेकिन हमारे आगे हो गया। सॉरी आई डिडंट हियर हिंदी, प्लीज डोंट फॉरगेट मी, टाइडी टागो चाहो। तो ओके ओके ओके, एंड अनदर वन, लैंग्वेज टीचिंग एंड रूरल स्टडीज, राधिका आत्मकुर, हाँ आत्मकुरी। ओके मैम, हम ये लैंग्वेज टीचिंग टू द रूरल स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से, हाँ, और हम इसको डिस्कस करेंगे गूगल वर्ड में कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग टू द रूरल स्टूडेंट्स को किस तरह से फाइंडिंग करेंगे, मेथड्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, डाटा कलेक्शंस का, डाटा इंटरप्रिटेशंस का, सारे चीज के बारे में हम लोग, राधिका मैम, हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज हमने जो डिस्कस किया है उसको हम समराइज कर दिया है मैंने, एंडेड करते हैं। ठीक है ना। और अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो कोई, अगर आप जानना चाहते हैं, डॉक्टर सिद्धि राजू इज हियर। Siddhiraj. तो हाँ, सिद्धि राजू इज हियर। तो सर, मैंने जो आपको बहुत सारे मतलब मॉडल्स, जो चैट जीपीटी का मॉडल्स बताया था, इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हो, अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। और इसके अलावा और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में राइट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज आस्क मी, वी विल डिस्कस Thank अबाउट। you very much. Your good explanation about the modeling and the environment of the system. The interlinking of the rivers is badly needed in our country. That's why I'm asking. Yes, yes. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, anyone? Any other? Any other questions if you have in your mind? Yes. If you have not questions, and we ended it. So I think there is no any questions. So thank you very much everyone for these sessions. If you have any questions, you can ask. अशोक कुमार, दीपक श्रीवास्तव, डॉक्टर शालू, अश्वनी देशमुख, आईफोन, आई डोंट नो हु इज, मसामत, सैमरून खातून, परवीन परमार, राधिका अतुरे, सुभाष, सूफिया, सुखपाल, सुरमा, हाँ, दिस वन इज Ye- ताइकू लेक्यू। Yes, Ji, Ashok Kumar is my scholar. He is some doubts. He is not asking. Pradeep. ओके सर, Yeah, another those scholars say. Okay, sir. okay. Other Taiki actually want to ask something. We have query here that kindly speak in English also. तो मैंने भी सारे प्रैक्टिकल में मैंने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल यूज किया है। अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ताइक लेक यू, so if you have any questions, you can ask me. I think you have already attended our workshop. Okay. Okay, sir. Thank you. But sometimes Thank you. it's good if you explain. Thank you. If you have any If- questions, I think you are from the Gujarat University, no? Yes, from Gujarat University, and I'm also a foreigner student. Okay. Okay. So I can't speak in the hearing the Hindus. You- That's why I asked that question. Everything is clear, na? You can understand actually what as I am using the language. I think so. Yeah, Okay. Okay. You it's can, good. I think that It's you good. can actually, this is a practical work, na? So I think you can understand Yes. exactly what I am doing in the chat and the chat GPT, na? We will discuss Yes, tomorrow. We sir. will I got discuss it. about the Google Word, na? Exactly what is the Google Word and Okay. how work it. So I think I hope कि आपने मतलब I think it is very beneficial for you and it is helpful Yes. for you, है ना? I hope. Yes, sir. And Yes. Yes. and Thank you. okay. Parveen Parmar,
Radhika, I will give your answer tomorrow, and we will discuss about the whole session in your topic. और जिन लोगों के पास जो भी टॉपिक है तो यू कैन राइट देयर, और थोड़ा दिमाग में ला के यू कैन आप किस चीज पर रिसर्च कर सकते हैं ना, है ना। तो यू कैन थिंक, यू कैन थिंक व्हाट इज योर रिसर्च फील्ड, है ना। कि किस, जैसे सर ने बताया हमें, सर ने एक टॉपिक दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो हमने उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जब डिस्कस किया, वी हैव लॉट ऑफ द डाटा, है ना। वो सारी चीजें, टेबल, सारी चीजें वो कल वी विल डिस्कस टुमारो, है ना। तो इसके अलावा और सारे जो भी टॉपिक्स हैं अगर आपके माइंड में, मैंने एक्चुअली मेरे पास भी टॉपिक्स थे बहुत सारे, लेकिन मैं ये चाहता था कि जो आप लोग टॉपिक दें हम उस टॉपिक पर क्लैरिटी करें, यानी ऐसा ना लगे आपको कि हमने एक टॉपिक को लिया है और अपनी अपने अपने अकॉर्डिंग उस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, सारी चीज मैनिपुलेट है। तो हमने इसीलिए कहा कि आप अपना टॉपिक दीजिए, हम उस टॉपिक पर, पूरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और उस टॉपिक पर डिस्कशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है कि हाँ, चैट जीपीटी हमारे लिए हेल्पफुल है, हो सकता है, लेकिन उसका यूज हमें किस तरह करना है, इट इज डिपेंड फॉर यू। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कल गूगल बार्ड का। सुभाष, इसमें देखो राधिका आत्मा है, सुभाष जी भी हैं, सोफिया है, सुवर्णा आचार्य है। तो मैं आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट, कैन यू ओपन योर कैमरा फॉर अ स्क्रीनशॉट, आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ना, है ना। तो आई स्टॉप द शेयरिंग हियर। तो कैन यू ओपन योर कैमरा काइंडली प्लीज, I request the all participant, can you open your camera? I want to see the all participant. हाँ, आप थोड़ा सा कर लीजिए प्लीज, प्लीज ओपन योर कैमरा। यस, प्लीज ओपन योर कैमरा, आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट। अभी बंद मत कीजिएगा, थोड़ा सा और आने दीजिए लोगों को। ओके, ताइची लाइक यू, थैंक यू मैम। ओके, जस्ट मिनट। ओके, ओपन योर कैमरा, आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट, काइंडली ओपन योर कैमरा। I request the all participant, Shubha ma'am, okay. Radhika, kindly open your camera. Shalu sir, Parveen Parmar, Sukhpal, can you open your camera, please? Yes, Radhika ma'am, can you open your camera? Parveen Parmar and Ashok Kumar and Sukhpal sir, can you open your camera, please? Okay, thank you very much everyone. Survana Acharya, Siddhi Raju sir, Deepak Thank you very Srivastava, much, sir. Sophia Your ma'am, valuable suggestion. Ashwani ma'am, Ashok sir, Shobha, Dr. Shalu, or everyone. Thank you very much for this today's sessions. Your cooperation is very, very appreciable. Thank you. We will see you tomorrow on a new topic. Okay, I think आप लोगों को थोड़ा समझ में तो आया ही होगा. Okay. Okay, thank you very much. Thank you.